ٹیلی ویژن پروگرامز، لائیو بائبل سٹڈیز، غیر مسیحوں کے مشکل ترین سوالات کے جوابات، کئی ہاٹ ایشوز پر مبنی مختلف زبانوں میں ایمان افروز یوٹیوب چینل، نوجوانوں کے مسائل، آن لائن کورسز، میری کئی کتب اور کئی کتب کے تراجم، بائبل مقدس کی کئی کتب کی تفاسیر اور اس بیش قیمت خزانہ تک رسائی کے لیے رابطہ کیجیے www.newlifeinstitute.org۔ مسیحا کے پاک جلالی اور مبارک ترین نام میں میرے عزیز بھائیوں، بہنوں اور ہم خدمت ساتھیوں، خواہ آپ ہمارے ساتھ اس اسکائپ آئی ڈی پر ہیں یا ہمارے پاس فیس بک کے کئی پیجز پر یا ٹک ٹاک پر اور یوٹیوب کے چینل اور واٹس ایپ گروپس میں، آپ سب کی خدمت میں آج مسیح یسوع کے قدرت والے نام میں سلام پیش کرتا ہوں اور شکر گزاری کرتا ہوں خداوند کا کہ آج یہ انمول موقع مجھے پھر سے مل پایا کہ میں آپ سبوں کے ساتھ مل کر اس آن لائن فیلوشپ کے وسیلہ سے برکت پاؤں اور خداوند کے اس زندگی بخش کلام کو بھی میں آپ کے ساتھ مل کر سیکھنے والا ہوں، اور میں بڑے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جیسے اس سے پہلے خداوند اپنے اس زندگی بخش کلام کے وسیلہ سے ہمیں برکت دیتے رہے، آج بھی وہ اس برکت کو ہمارے ساتھ بانٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ آج کے دن ہم رومیو کے خط کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ نئے عہد نامہ میں ہم پولس رسول کا رومیو کے نام لکھے جانے والے خط اور اس کے ہم 6 باب کا مطالعہ کرتے ہیں، اور آج اس 6 باب کی 15 اور 16 ان 2 آیات پر بات کریں گے۔ اور خدا کے لوگوں، جب بھی ہم خداوند کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں اور آپ اسی غرض اور نیت سے آن لائن ہوتے ہیں کہ خدا کے کلام کو سیکھ پائیں، جیسا خدا کے خادم نے کہا بھی ہے، اچھا ہوگا کہ آپ کے پاس کم از کم خدا کا کلام ہو تاکہ آپ اس کو کھول سکیں اور دیکھ سکیں کہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں وہ خدا کے کلام میں آلریڈی موجود ہے، اور یوں آپ ان خوبصورت اور عمیق اور گہری باتوں کے وسیلے سے خوب برکت پانے والے ہو سکیں۔ جب میں آج رومیو 6 باب اور اس کی 15 اور 16 2 آیات کی تلاوت کرتا ہوں تو چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ اس وقت شریک ہوں ان آیات کے پڑھنے میں بھی، یعنی تلاوت کرنے، اور ان آیات کے سن کر ان کے سمجھنے میں بھی، تاکہ وہ باتیں جن کا تعلق ہماری شخصی زندگی سے ہے، ہم ان باتوں کو اپنی شخصی زندگی پر اپلائی کر سکیں۔ اس لیے آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، پس کیا ہوا؟ کیا ہم اس لیے گناہ کریں کہ شریعت کے ماتحت نہیں، بلکہ فضل کے ماتحت ہے؟ ہرگز نہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ جس کی فرما برداری کے لیے اپنے آپ کو غلاموں کی طرح حوالہ کر دیتے ہو، اسی کے غلام ہو؟ جس کے فرما بردار ہو، خواہ گناہ کے جس کا انجام موت ہے، خواہ فرما برداری کے جس کا انجام راست بازی ہے۔ آمین۔ غور فرمائیے گا،
पहली आयत यानी 15 आयत जो आज तलावत की गई, बस क्या हुआ? हाँ, मुराद यह है कि इससे पेशतर मुकद्दस पौलुस अपने कारईन को यह बात याद दिला रहे हैं कि जो बातें इससे पहले कही गई है उसके नतीजा में मैं क्या कह रहा हूं। और आप जो हमारे साथ ऑनलाइन शरीक हैं, अगर इससे पहले आप रेगुलर हमारे साथ इस बाइबल स्टडी में शरीक नहीं रहे, तो फिर मेरी फेसबुक पर आप स्क्रॉल डाउन करें या फिर मेरी वेबसाइट पर जाइए और वीडियो टीचिंग में न्यू टेस्टामेंट में जाएं, यानी नए अहदनामा में, और वहां रोमियो के खत का आज तक का मुतालिया आपको मिल पाएगा। इसलिए आप गौर से आज के कलाम को भी सुने और बहैसियत एक तालिब इल्म और तालिबा के आप माजी की बाइबल स्टडीज के जरिया से भी बरकत पाएं और इन सच्चाइयों को और इन हकायक को अपनी जिंदगी पर लागू करने वाले हूं। तो मुकद्दस पौलुस कहते हैं, बस क्या हुआ? यानी जो कुछ मैं कहा या कह चुका हूं उसका नतीजा क्या है? आगे सुनिए। क्या हम इसलिए गुनाह करें कि शरीयत के मातहत थे, बल्कि फजल के मातहत नहीं? आगे, क्या हम इसलिए गुनाह करें कि शरीयत के मातहत नहीं बल्कि फजल के मातहत है? हरगिज नहीं। जब मैं इस आयत 15 को देख रहा था तो मुझे इस बाब की पहली आयत भी याद आ रही है, क्योंकि उस आयत में भी मुकद्दस पौलुस इसी तरह की बात को एक और अंदाज से बयान करते हुए नजर आते हैं। और उस पहली आयत में लिखा है, बस हम क्या कहें? क्या गुनाह करते रहे ताकि फजल ज्यादा हो? हरगिज नहीं। और फिर आगे वो बताते हैं कि हम गुनाह के एतबार से मर चुके हैं। लेकिन तीसरी आयत में, क्या तुम नहीं जानते? और सेम इसी तरह का स्ट्रक्चर 15 और 16 आयात में भी हमें मिलता है। और वहां भी मुकद्दस पौलुस अपने कारईन को यह बात याद दिला रहे हैं कि क्या हम इसलिए गुनाह करें कि हम फजल के दौर में हैं और शरीयत के मातहत नहीं? ये दोनों बातें बड़ी अहम हैं मेरे लिए और आपके समझने के लिए। शरीयत ने गुनाह की तमीज हमें बख्शी है, उसने गुनाह की पहचान करवाई। मसीह तक पहुंचने में जो कामल शरीयत पर पूरे तौर पर अमल करने वाला माहिर उस्ताद आलम बाअमल और रब्बी है, दुनिया का निजात दहंदा है, उस तक पहुंचने में शरीयत हमारी मुअल्लम यानी उस्ताद बनी है। लेकिन शरीयत ने गुनाह को जाहिर तो किया, लेकिन किसी भी शख्स को गुनाह से बरी नहीं किया। काश कि मैं इस बात पर खूब रोशनी डाल सकूं, लेकिन इससे पहले की बाइबल स्टडीज में मैं ऑलरेडी बहुत कुछ कह चुका हूं, इसलिए आज इतनी ज्यादा रोशनी डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन यह जरूर कहूंगा कि शरीयत ने हमें मुजरम ठहराया, हमें बरी नहीं किया गुनाह से। उसने हम पर जाहिर किया कि तुम गुनाहगार और पापी हो, और खुदा शरीयत की आंख से
अपने पाकीज़गी के मय्यार के मुताबिक जब बशर को देखता है, इंसान को देखता है, तो वो ये कह उठता है कि कोई भी रास्तबाज नहीं है, एक भी नहीं है, सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। और ये शरीयत के मुताबिक बात हो रही है। वो जो अपने आप की परफॉर्मेंस के जरिया से, नेक कामों के जरिया से खुदा तक रसाई हासिल करने की कोशिश करते रहे और करते हैं, ये उन सब लोगों के लिए बात है कि नेक आमाल और शरीयत के आमाल अच्छे हैं, बुरे नहीं हैं, लेकिन तुम उनको 100% कर नहीं पाते। इसलिए शरीयत के आमाल के सबब से तुम रास्तबाज नहीं ठहर सकते। और दूसरी तरफ मुकद्दस पौलुस क्या कहते हैं? एक तो ये, क्या इसलिए हम गुनाह करें कि शरीयत के मातहत नहीं? ये शरीयत के मातहत ना होना से मुराद टोटली शरीयत के ताबे होना और मसीह को एक तरफ कर देना, फजल को एक तरफ कर देना, टोटली अपने आप को शरीयत के मातहत करने की बात हो रही है। तो यहां पर हमें नजर आता है क्लियरली कि चूंकि हम शरीयत के मातहत नहीं हैं, हम कौन? हम जो फजल के दौर में हैं, जिन्होंने मसीह के फजल को कबूल किया, खुदा के फजल को ईमान के जरिया से कबूल किया, शरीयत के मातहत नहीं। तो अब कोई मसला ही नहीं है, गुनाह करते फिरे पहली आयत की तरह ही। ये दोनों बातें आयत 1 और आयत 15, ये दोनों एक दूसरे अंदाज से, एक दूसरे एंगल से एक ही बात को पेश करती है। और मुकद्दस पौलुस कहते हैं कि हम शरीयत के मातहत नहीं, हम फजल के मातहत हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि हम गुनाह पर गुनाह पर गुनाह पर गुनाह करते चले जाएं? फजल के मातहत होने से क्या मुराद है? शरीयत के मातहत होना से मुराद अपनी परफॉर्मेंस, नेक आमाल, कुर्बानियों, नजरो नियाज, अमाले हसरा, जो कुछ भी अहकामे अशरा, 10 अहकाम और दीगर शरई जितनी भी फॉर्मेलिटीज थी, 613 के करीब अहकाम, उन तमाम की फर्माबरदारी करना शरीयत के मातहत है, जो कोई भी नहीं कर पाया। लेकिन दूसरी तरफ फजल के मातहत की बात हो रही है। ये दोनों एक दूसरे के बरक्स काम करते हैं, या यूं कहना चाहिए कि शरीयत अब फजल में जाकर मुकम्मल होती है, और फजल ये खुदा की तरफ से गुनाहगार इंसान पर होता है कि वो काम जो एक गुनाहगार इंसान खुद कर नहीं पाता था, यानी खुदा की कुर्बत और खुदा की नजदीकी को अपने आमाले साले के जरिया से, नेक आमाल के जरिया से हासिल नहीं कर सकता था, तो फिर खुदा ने अपनी मोहब्बत में जिस्म इख्तियार किया और मसीह यस्सु में वो इस दुनिया में आ गया, और उसने गुनाहगार इंसान के लिए अपनी जान दी, ताकि जो कोई मसीह यस्सु पर ईमान लाए, यानी खुदा के फजल पर ईमान लाए, वो हमेशा की जिंदगी और गुनाहों की मुआफी को हासिल करे। अब नजात
या फलाह, खुदा की कुर्बत और नजदीकी, यह हमारे नेक आमाल पर मबनी नहीं है, कई बार कह चुका हूं, बल्कि खुदा के निजात बख्श काम यानी खुदा के फजल को कबूल करने के जरिया से है। निजात ईमान के जरिया से, खुदा के फजल को कबूल करने के जरिया से है, जो मसीह खुदावंद के वसीला से जाहिर हुआ है। तो मुकद्दस पौलुस क्या कहते हैं? एक तरफ तेरी परफॉर्मेंस है ए गुनाहगार इंसान, और दूसरी तरफ खुदा की तरफ से किया गया इंतजाम। एक तरफ जमीन वाले जो कुछ करते हैं, और दूसरी तरफ खुदा जो इंसान के लिए करता है। और साफ जाहिर है जो जमीन वाले करते हैं वो कभी भी परफेक्ट और कामिल नहीं होता, और जो खुदा करता है चूंकि वो खुद कामिल है इसलिए परफेक्ट और कामिल है, और जो कोई उसके उस कामिल इंतजाम को कबूल करता है हमेशा की जिंदगी उसकी है। तो मुकद्दस पौलुस इस बात से पर्दा कुशाई करते हुए फरमाते हैं कि चूंकि अब हम शरीयत के मातहत नहीं हैं और खुदा के फजल के तहत हैं, इसलिए हम गुनाह करते फिरे। वो आगे क्लियरली कहते हैं नो 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 नो, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। मैं इससे पहले 2-3 बाइबल स्टडीज में इस बात का जिक्र कर चुका हूं कि मुसलमान लोग हमें यह बात कहते हैं, इस वक्त कई मुसलमान सुन भी रहे हैं, वो ये कहते हैं अच्छा तो जब खुदा का फजल आप पर हो गया, खुदा ने आपके गुनाहों का फिदिया और कुफारा दे दिया, तो अब आपको खुली आजादी है जो करते फिरें। मेरे मुसलमान दोस्त, ये आप कह रहे हैं कि हमें खुली आजादी है, खुदा नहीं कह रहा। खुदा नहीं कह रहा, क्योंकि हम खुदा के फजल को कबूल करने के वसीला से निजात पाते हैं, इसलिए हम नेक काम करते हैं। वो फजल हमें तरबियत देता है, हमें ट्रेंड करता है कि हम नेक काम करें। खुदा का फजल, खुदा का एहसान जो मुझ गुनाहगार पर हुआ है, हम नेक अमाल के हक में हैं, लेकिन नेक अमाल इसलिए नहीं करते कि हम निजात पाएं, नो नो नो, बल्कि हम निजात पाए हुए हैं इसलिए हम नेक काम करते हैं। और निजात पाए हुए से मुराद ऑटोमेटिकली नहीं है, इससे मुराद यह है कि निजात के कबूल करने, खुदा के फजल के कबूल करने के सबब से हम निजात यानी गुनाहों की मुआफी और हमेशा की जिंदगी के वारिस होते हैं। लिहाजा हम नेक अमाल के बरखिलाफ नहीं है, वो एक ईमानदार की रूहानी पहचान है, वो एक फल है। जैसे किसी भी दरख्त की पहचान उसका फल होता है, वैसे ही एक मसीही ईमानदार की पहचान नेक आमाल है, रूह का फल है। लेकिन नेक आमाल हमें खुदा तक नहीं पहुंचा सकते। खुदा का फजल जो हम पर हुआ ईमान के जरिया उसको कबूल करने से हम खुदा की कुर्बत और नजदीकी में जाते हैं। नेक अमाल हमारा फल है जो दूसरों को नजर आता है, हमारी पहचान है कि हम पर फजल हुआ, इसलिए उस फजल के तहत रहकर हम रास्तबाजी के काम करते हैं। तो याद कीजिए
मुकद्दस पौलुस जवाब देते हैं, नो, हम शरीयत के मातहत नहीं हैं, फजल के मातहत हैं। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि हम गुनाह करने का ठेका ले लें। नो 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 नो, ऐसा हरगिज नहीं है। यहां गुनाह करना के एक अहम तरीन माना है। एक तो वो जो हैबिचुअल यानी आदि गुनाह का हो जाना, किसी भी किस्म के गुनाह का आदि हो जाना और उससे जान छुड़ाना मुश्किल नजर आए। कई लोग ऐसे हैं, वो मसीह को पा भी चुके, बपतिस्मा भी ले लिया, लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसी आदत उनमें है जो उनको खुद फील होती है कि ये गलत है, लेकिन इसके बावजूद वो उन आदत के ताबे रहकर वैसा करते हैं। शायद वो किसी दूसरे का नुकसान ना करते हों, लेकिन अपने बदन का नुकसान जरूर करते हैं। स्मोकिंग, नस्वार या कई इस तरह के अवामिल जो इस खुदा के मकदस को, जैसा हम 6 की पहली आयत में देख चुके हैं, इसको बर्बाद करने वाले हैं। अगर हम किसी और का कोई नुकसान नहीं करते और अपने आप का नुकसान करते हैं तो यह भी गुनाह में है। और लिखा है कुरिन्थियों के खत में, तुम्हारा मकदस, तुम्हारा बदन खुदा का मकदस है, क्योंकि खुदा का रूह इसमें बसा हुआ है। और जो कोई खुदा के मकदस को बर्बाद करेगा, खुदा उसको बर्बाद करेगा। हां, यह बदन खुदा की तरफ से अमानत के तौर पर हमें मिला है। हम इसके मुख्तार नहीं है कि जैसे चाहे हम इस्तेमाल करें, लेकिन इस बदन को हम खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करना है, क्योंकि खुदा का रूह हम में बसा हुआ है और यह बदन खुदा का मकदस है। अब आयत 16 में, क्या तुम नहीं जानते, यानी रोमी लोगों को, रोमी मसीही ईमानदारों को वो ये बता रहे हैं कि क्या तुम्हें पता नहीं है। ये बिल्कुल आम सी बात है, लेकिन यूं लगता है कि जैसे आज जिस सन और जिस डेट में हम इस कलाम को सुन रहे हैं और हम सीख रहे हैं, यूं लगता है कि जैसे खुदा आज भी मुकद्दस पौलुस के जरिया से मुझसे और आपको मुखातब होकर यह कह रहा है, क्या तुम्हें पता नहीं है? क्या तुम्हें पता नहीं? बाज़ों का कोई ऐसा काम हो जाता है कि हम करते हैं और दूसरे हमें कहते हैं, क्या तुम्हें पता नहीं है? मसलन मगरब में अभी सर्दी शुरू हो गई और अगर हम बगैर सर ढांपे या बगैर जूती के चप्पल पहनकर बाहर निकलते हैं तो शायद हमारे बड़े हमें यह कहें, क्या तुम्हें पता नहीं कि सर्दी है, बीमार हो जाओगे। मुकद्दस पौलुस यहां पर उस वक्त के मोमिनीन को भी और आज के दौर के मोमिनीन को भी ये फरमा रहे हैं, क्या तुम नहीं जानते? और जब कोई मुझे और आपको ये कहे, साहब क्या आपको खबर नहीं है, क्या आपको पता नहीं है, तो हम, अगर हम ऊंघ भी रहे हों तो हम जाग जाते हैं कि पता नहीं क्या हो गया।
اور मुकद्दस पौलुस उनको कहते हैं, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि जिसकी फर्माबरदारी के लिए, गौर फरमाइएगा, जिसकी फर्माबरदारी के लिए अपने आप को गुलामों की तरह हवाला कर देते हो, उसी के गुलाम हो। जिसके फर्माबरदार हो, खा गुनाह के जिस्म का अंजाम, जिसका अंजाम मौत है, खा फर्माबरदारी के जिसका अंजाम रास्त बाजी है। यहां पर मुकद्दस पौलुस एक रूहानी उसूल को पेश कर रहे हैं। वो गुलामी के माना में थोड़ा फर्क बयान कर रहे हैं और फर्माबरदारी और गुनाह और रास्तबाजी का मुवाजना करते हुए हमें नजर आते हैं कि जिसकी तुम फर्माबरदारी करते हो तुम उसके गुलाम हो। अजीज भाइयों और बहनों, इस वक्त मुझे और आपको जो इस कलाम को इस वक्त सुन रहे हैं, अपने आप पर गौर करने की जरूरत है कि ऐसी कौन सी बुरी आदत है जिससे मैं जान छुड़ाने की हत्तुल मकदूर कोशिश करता और करती हूं। ईमानदार हूं, खुदा का रूह मुझ में बसा हुआ है, लेकिन मुझसे जान छूट नहीं पा रही। जरा सोचने का मुकाम है कि वो कौन सी ऐसी आदत है। शायद आपकी जिंदगी में किसी और तरह की ऐसी आजमाइश हो, किसी दूसरे की जिंदगी में किसी और तरह की, लेकिन वो बात जिसकी बाबत हम जानते हैं कि यह गलत है और इसके बावजूद जब हम वो काम करते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि हम उसके गुलाम हैं, गुलाम। और गुलाम पुराने वक्तों में एक ऐसा बिका हुआ शख्स होता था जो अपनी मर्जी के मुताबिक गोया सांस भी नहीं ले सकता था। जो कुछ मालिक कहता था उसके मुताबिक गुलाम को करना पड़ता था, और अगर ना करता तो उसका काम तमाम भी किया जा सकता था। एक गुलाम से मालिक मुकम्मल तौर पर फर्माबरदारी का तकाजा करता था। अब खा हम गुनाह के गुलाम हो, और गुनाह से मुराद तमाम तरह के गुनाह हो सकते हैं, लेकिन पॉसिबली कोई एक ऐसा गुनाह हो, जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं और उससे छूट नहीं रही। हम उस गुनाह की पैरवी कर रहे हैं और फिर इस जिस्म को उस गुनाह के हाथों हम बेच चुके हैं और उस गुनाह की गुलामी में इस जिस्म को हमने रूह जान बदन को दिया हुआ है। और दूसरी तरफ मुकद्दस पौलुस कहते हैं फर्माबरदारी, एक तरफ गुनाह यानी नाफरमानी है और दूसरी तरफ फर्माबरदारी है। यानी अगर हम अपने मालिक की फर्माबरदारी करते हैं, खा वो फिजिकल मालिक हो जिसके यहां हमें काम मिला हुआ है, या खुदा जो सबसे बड़ा आका और मालिक और खुदावन है, हम उसके यहां हों। सोचने का मुकाम यह है
کہ اس فرما برداری کا اجر ہے. خدا کی فرما برداری راست بازی کہلاتی ہے، اور راست بازی خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں، ناراست نہیں ہو سکتے. اور بائی دا وے، ایک دفعہ پھر میں اس بات کا ذکر کرتا چلوں، جب ہم کہتے ہیں نا میں عبادت کے لیے جا رہا ہوں، یعنی خدا کی بندگی کے لیے چرچ جا رہا ہوں، یا چلو کسی بھی عبادت گاہ میں اس عبادت کا کرنے والا جاتا ہے، تو جانتے ہیں کہ جو عبادت کا لفظ ہے اس کی روٹس میں اگر جائیں تو یہ لفظ عبد سے نکلا ہے. عبد کے معنی بندہ کے ہیں، اور بندہ کے معنی غلام کے ہیں. اور میں نے پہلے کہا ایک غلام سے یہ تقاضا کیا جاتا تھا کہ وہ اپنے مالک کا مکمل طور پر فرما بردار ہو. تو عبد کے معنی بندہ یا غلام کے ہیں، اور وہ بندہ جس کی عبادت کرتا ہے وہ معبود کہلاتا ہے. اور اس بندے کو اگر اس معبود کے لیے کچھ کرتا ہے تو اس کو ہم عبادت کہتے ہیں. ہاں، اور عبادت کرنے والے شخص کو ہم عابد کہتے ہیں. عبد، عابد، عبادت اور معبود، اس میں فل فرما برداری کی بات ہو رہی ہے. تو اب خدا تو ہمیں غلام نہیں بناتا. مسیح نے کہا اب سے میں تمہیں غلام نہیں بلکہ اپنے دوست کہوں گا. ہم خدا کے روحانی طور پر فرزند، بیٹے اور بیٹیاں ہیں. لیکن اب سوچنے کا مقام یہ ہے کہ میری اور آپ کی فرما برداری خدا کے حضور کیسی ہے. ہم کہیں میں ایمان بھی لے آیا ہوں، ہم کہیں میں نے بپتسمہ بھی لے لیا ہے، ہم کہیں میں زبانیں بھی بولتا ہوں، ہم واز بھی کرتے پھریں، گلا بیٹھ جائے چیخ چیخ کر، اپنے آپ کو دعا گو بھی کہوں، لیکن اگر خدا کی فرما برداری پبلکلی نہیں ہے تو میں 2 نمبر ہوں، 1 نمبر نہیں. یہ ہے کڑوی گولیاں ہم سب کے لیے نگلنا، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی. لیکن ان گولیوں کے کھانے سے یقین جانیے بڑا فرق پڑتا ہے اگر ہم ان کو نگل جائیں اور خدا کے ساتھ وفاداری سے ہو چلیں تو. لہذا ان 2 آیات کے مطابق پولس رسول کہتے ہیں کہ ایمانداروں، خدا کے فضل کو قبول کرنے کے بعد ہرگز گناہ نہیں کرنا، عادی نہیں ہونا. کیونکہ تم اگر گناہ کرو گے تو تم گناہ کے غلام ہو، اور اگر خدا کی فرما برداری کرو گے تو پھر راست بازی اس کا نتیجہ ہے، تم خدا کے فرزند بیٹے کہلاؤ گے. اپنی زندگیوں پر میں اور آپ اس وقت غور کریں کہ ہم کہاں ہیں. اگر ایسی بری عادات جسم میں ہیں جن سے جان چھڑانا چاہتے ہیں لیکن نہیں چھوٹ پا رہی، تو موقع ہے خدا کے روح کو موقع دیں کہ وہ ہمیں فضل بخشے، کہ وہ اپنی فرما برداری میں ہمیں لے چلے. ہم جسم کی خواہش کے مطابق اور آنکھوں کی خواہش کے مطابق نہ چلیں، بلکہ خدا کی فرما برداری میں اپنی زندگی کو بسر کرنے والے ہو سکیں. میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں
اور اپنے آپ کے لیے بھی آئے ہم اپنے سر رب الافواج کے حضور جھکائیں اور دعا کریں۔ اے خداوند پاک خدا، اس زندگی بخش کلام کے لیے ہم آپ کا شکر اور آپ کی تعریف کرتے ہیں، اور اس بات کے لیے کہ ہماری نجات اور ہماری خلاصی اعمال شریعت پر عمل پیرا ہونے سے نہیں، بلکہ خدا کے فضل پر ایمان لانے کے ذریعہ سے ہے، اور ہمارے نیک اعمال شریعت کے احکام ہمارے باطن میں فضل کے ذریعہ سے کیے گئے کام کا ظاہری نشان ہے۔ او خداوند ممکن کیجئے کہ ہم آپ کی فرما برداری میں اپنے جیون اور اپنی زندگی کو گزارنے والے ہوں، اور آج یسوع کے نام سے میں ہر طرح کی بری عادت کو، ہر طرح کے گناہ کو جس نے ہمیں غلام بنا رکھا ہے، یسوع کے قدرت والے نام سے حکم دیتا ہوں، ہماری زندگی سے، ہمارے خاندان سے جاتا رہے۔ پاک روح کی آگ کے وسیلہ سے وہ تمام طرح کی ڈیزائرز، وہ تمام طرح کی خواہشات اور وہ گناہ کی طرح روجان جل کر بسم ہو جائے۔ شریر یسوع کے نام سے تجھے حکم دیتے ہیں، ہماری زندگی سے دور ہو جا۔ ہر طرح کی گندی زبان یسوع کے نام سے پاک ہو جائے۔ ہر طرح کے گندے خیال یسوع کے نام سے جاتے رہیں، اور خداوند ممکن کیجئے کہ پاک روح کی قدرت سے ہم آپ کے جلال اور آپ کی بزرگی کے لیے اپنے بدن کو آپ کا مقدس سمجھتے ہوئے اپنا جیون گزارنے والے ہوں۔ ہر طرح کی لڑائی اور جھگڑے کی روح جاتی رہے، ہر طرح کی نشے کی روح یسوع کے نام سے جاتی رہے، بد زبانی کی روح یسوع کے نام سے جاتی رہے، گالی گلوچ کی روح یسوع کے نام سے جاتی رہے، دوسروں کو حقیر جاننے کی سوچ یسوع کے نام سے جاتی رہے، نفرت اور کدورت اور تعصب کی روح یسوع کے نام سے جاتی رہے۔ ہاللویا۔ اور خداوند ممکن کیجئے کہ ہم آپ کے جلال اور آپ کی بزرگی کے لیے راست بازی کے تحت ہو کر اپنا جیون گزارنے والے ہو سکیں۔ ہماری دعا اور التجا کو سنیے اور قبول کیجئے، کیونکہ مانگتے ہیں منجی عالمین یسوع مسیح کے پاک، بزرگ اور مقدس ترین نام کے وسیلہ سے۔ آمین اینڈ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل، اور خداوند نے چاہا تو نیکسٹ ویک پھر یہاں سے ہی آگے ہم کنٹینیو رکھیں گے۔ تب تک میری دعا ہے کہ آپ خداوند کی حفاظت اور خداوند کی امان میں رہیں۔ گاڈ بلیس یو آل۔ www.newlifeinstitute.org